کبھی ایک وقت تھا جب رات کے 8 بجتے ہی ہر گھر میں بی بی سی سیربین کی آواز گونجتی تھی۔ بی بی سی پاکستان سے میں ہوں سائمہ علی۔ اردو شام 4 بجے کی خبریں۔ بی بی سی پاکستان سے میں ہوں احمد رضا۔ ہم نے اسی آواز کے ساتھ آنکھ کھولی اور اسی سے دنیا کو سمجھنا سیکھا۔ حالت حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا آداب۔ حالت حاضرہ کے پروگرام میں آج آپ صرف امریکہ کو نہیں چین کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، صرف امریکہ کو ہی نہیں امریکہ اور ایران کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، یہی نہیں بلکہ انڈیا اور امریکہ کو بھی دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ آواز خاموش ہو گئی۔ بی بی سی اردو شارٹ ویو اور میڈیم ویو پر اپنی ریڈیو نشریات سیربین آج 31 دسمبر سے بند کر رہا ہے۔ سامع کا سوال: یہ کیوں بند ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہو گئے۔ جناب یہ کام مت کیجیے۔ مگر ہم نے طے کیا کہ یہ خاموشی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یوں پیدا ہوا زی بی سی سیربین۔ اتوار 18 جنوری کے سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کا احتجاجی مظاہروں میں ہزاروں افراد کی ہلاکتوں کا اعتراف، امریکی صدر کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ کھیل نہ کھیلا جائے، امریکی محکمہ خارجہ کا ایران کو انتباہ۔ جانیے کیا ایران کے پرتشدد مظاہرے رجیم چینج کر پائیں گے؟ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ دراصل ان مظاہروں کے پیچھے غیر ملکی عناصر کا ہاتھ ہے۔ وہ اسرائیل اور امریکہ پر اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے ان مظاہروں کو ہوا دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ گرین لینڈ پر قبضے کی مخالفت، یورپی رہنماؤں نے ٹرمپ کی ٹیرف کی دھمکی کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ طاقت کے بل پر چلنے والی دنیا میں امریکہ، چین اور روس کے درمیان غلبہ حاصل کرنے کی دوڑ۔ کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی سے 6 ہلاکتیں، عینی شاہدین نے کیا دیکھا؟ چین میں سور ذبح کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر مدد کی اپیل، ہزاروں لوگ خاتون کے گاؤں پہنچ گئے۔ جانیے کروڑ پتی طوائف گوہر جان کے بارے میں، جنہیں خود سے آدھی عمر کے نوجوان سے محبت میں دھوکہ ملا اور دولت بھی گئی۔ یو پی کے اعظم گڑھ میں جنمی گوہر جان کی، جنہیں ایلین اینجلینا یوورٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن جب ان کی ماں مسلمان بن گئی تو وہ گوہر جان بن گئی۔ پاکستان میں پرسنل بیگیج اسکیم ختم، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے گاڑیاں لانا مشکل۔ ٹاس کے دوران نو ہینڈ شیک، انڈیا کے ساتھ میچ سے قبل تنازع جس پر بنگلہ دیش بورڈ کو وضاحت دینا پڑی۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای نے ملک میں حالیہ مظاہروں میں ہزاروں افراد کے ہلاک ہونے کا اعتراف کر لیا ہے، تاہم انہوں نے ہلاکتوں کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا ہے۔ سنیچر کو اپنے ایک خطاب میں خامنہ ای نے کہا کہ حالیہ مظاہروں میں ہزاروں افراد مارے گئے اور کچھ ہلاکتیں انسانیت سوز ظالمانہ انداز میں کی گئی ہیں۔ امریکہ میں موجود ایرانی انسانی حقوق کے کارکنوں کی نیوز ایجنسی HRANA نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں بد امنی کی وجہ سے 3090 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کچھ ارکان یہ تعداد کہیں زیادہ بتاتے ہیں۔ حالیہ احتجاجی مظاہروں کے دوران ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کے سبب ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے حوالے سے واضح معلومات حاصل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایرانی مظاہرین سے اپیل کی تھی کہ وہ احتجاج جاری رکھیں اور دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ایرانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو مارا تو امریکہ فوجی کارروائی کرے گا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق خامنہ ای کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ سے وابستہ لوگوں کے سبب شدید نقصان ہوا ہے اور ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہم ان ہلاکتوں، نقصان اور ایرانی قوم کی رسوائی کے لیے امریکی صدر کو مجرم سمجھتے ہیں۔ کمک کردن که حالا اونم مختصراً عرض خواهم کرد. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات،
هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. ख्याल रहे ईरान में गुज़िश्ता बरस 28 दिसंबर को मुआशी बदहाली के सबब एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए थे जो 2 हफ्तों से ज़्यादा जारी रहे और उनमें तशद्दुद का अंसर नुमाया था। इन मुजाहरों के दौरान मुजाहरीन के खिलाफ जानलेवा ताकत का इस्तेमाल भी किया गया था। BBC फारसी और BBC वेरीफाई ने ऐसी मुतअद्दिद वीडियोज़ के दुरुस्त होने की तस्दीक की है जिनमें ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। जनूब मगरबी ईरान के शहर शिराज में एक खातून ने BBC फारसी को बताया कि हालात को काबू में रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अब भी मोटरसाइकिलों पर गश्त कर रही हैं, ताहम हालात अब मामूल पर आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर ईरानी रहबर आला ये भी कह चुके हैं कि अमेरिका का मकसद ईरान को निगलना है। सदर ट्रंप ने ताहाल ईरानी रहबर आला के बयान पर रद्द अमल नहीं दिया है और BBC ने इस पर मौक़िफ़ जानने के लिए व्हाइट हाउस से राब्ता करने की कोशिश की है। ताहम अमरीकी महकमा खारजा का सनीचर को कहना था कि उन्होंने इतलात सुनी है कि ईरान अमरीकी अड्डों को हदफ बनाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि अगर ऐसा हमला हुआ तो ईरान को शदीद ताकतवर रद्द अमल दिया जाएगा और तेहरान सदर ट्रंप के साथ मजीद खेल नहीं खेल सकेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने फारसी जुबान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पैगाम में ईरान की जानिब से सदर ट्रंप और अमरीका के खिलाफ बयानात पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। इस पैगाम में कहा गया कि अगर इस्लामी जमहूरिया ईरान अमरीका के असासों पर हमला करेगा तो उसे एक निहायत ताकतवर रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि सदर ट्रंप कह चुके हैं कि उनके सामने तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पैगाम के एक और हिस्से में खबरदार किया गया है कि हम पहले भी कह चुके हैं और दोबारा खबरदार कर रहे हैं कि सदर ट्रंप के साथ खेल ना खेला जाए। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हालिया हफ्तों में बारहा कह चुके हैं कि अगर इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुजाहिरीन को मारने और कैदियों को फांसी देने का सिलसिला जारी रखा तो अमरीका सख्त रद्द अमल देगा। अपने ताज़ा तरीन बयानात में सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने 800 अफराद को सजाए मौत देने से गुरेज किया, जिसके लिए इस्लामी जमहूरिया की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानब ईरान के रहबर आला खामनाई ने अपने खिताब में डोनाल्ड ट्रंप को ही मुजरिम करार दिया है। सामीन, गुज़िश्ता साल 28 दिसंबर को तेहरान के बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों से शुरू होने वाले मुजाहरे आहिस्ता आहिस्ता पुरतशद्दुद होते गए और देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गए। अब तक इन मुजाहिरों और एहतजाज की लहर के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और दसियों हजार अफराद गिरफ्तार भी हैं। आलमी बिरादरी भी ईरान पर दबाव डाल रही है कि वो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर सख्त क्रैकडाउन से परहेज करे। इस हफ्ते के सैरबीन में मेजबान आलिया नाज़की ने ये जानने की कोशिश की है कि ईरान में इस वक्त आखिर ये एहतजाज हो क्यों रहे हैं और क्या ये मुजाहिरे ईरान में रजीम चेंज की सलाहियत रखते हैं। आपने ईरान से आने वाली एहतजाज और मुजाहिरों की सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। बज़ाहिर बढ़ती हुई कीमतों और एक तेज़ी से कमज़ोर होती करेंसी के ख़िलाफ़ दिसंबर के आखिरी दिनों में शुरू होने वाले ये मुजाहिरे देखते ही देखते लगभग पूरे मुल्क में फैल गए। हुकूमत की तरफ से इसका रद्द-ए-अमल भी शदीद रहा। आलमी बरादरी खुसूसन अमरीकी सदर ट्रंप ने इस पर सख्त स्टैंड लिया और बार बार ईरान को वार्न किया कि वो पुरअमन मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बंद करे। ईरान का मौजूदा निज़ाम हुकूमत 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद वजूद में आया। माहिरीन कहते हैं कि पिछले कुछ अरसे से ऐसा लगने लगा है कि मुल्क के अंदर इस सियासी निज़ाम पर एतमाद कम होता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह मुल्क में बढ़ती हुई इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसकी एक बड़ी वजह ईरान पर लगे अमरीकी सैंक्शंस हैं। इस्लामी इनकलाब और इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत के वजूद में आने के साथ ही ईरान पर इख्तिसादी पाबंदियां भी लगा दी गई थीं। मुआशी मसाइल के साथ साथ समाजी इशूज़ भी हैं। शायद आपको याद हो 2022 में 22 बरस की मासा अमीनी की हिजाब के बारे में कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर पुलिस हिरासत में मौत के बाद भी मुल्क की एहतजाज और मुजाहिरे शुरू हो गए थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उन मुजाहिरों के बाद ये मौजूदा एहतजाजी लहर ईरानी हुकूमत को दरपेश सबसे शदीद चैलेंज है। ईरानी हुकाम कहते हैं कि दरअसल इन मुजाहिरों के पीछे गैर मुल्की अनासिर का हाथ है। वो इसराइल और अमेरिका पर अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए इन मुजाहिरों को हवा देने का इल्ज़ाम लगाते हैं।
اس پس منظر میں آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران میں آخر ہو کیا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ ایران میں اس وقت آخر یہ احتجاج ہو کیوں رہے ہیں، اور کیا یہ مظاہرے ایران میں رژیم چینج یعنی طرز حکومت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو پچھلے 17 سال میں کئی ایسے مواقع آئے ہیں جب ایران میں بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہرے اور احتجاج ہوئے ہیں۔ 2009، 2019، 21 اور 2022 میں بھی ایران میں حکومت مخالف احتجاج اور مظاہرے ہوئے، لیکن ہر بار سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن کیا اور مظاہروں کو کنٹرول کر لیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بظاہر اس بار ہونے والے مظاہرے لوگوں کی شمولیت اور شدت کے لحاظ سے سب سے بڑے اور شدید معلوم ہوتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ایران میں مظاہرین پر شدید حکومتی کریک ڈاؤن پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ایران میں ایک سیکیورٹی اہلکار کے مطابق مظاہروں اور احتجاج کی اس تازہ لہر کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز سمیت کم سے کم 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اس بار اس احتجاج اور ان مظاہروں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ابتدائی احتجاج اور مظاہرے 28 دسمبر کو تہران کے بازاروں میں الیکٹرانکس کی دکانوں سے شروع ہوئے۔ یہ وہی دن تھا جب ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قیمت تقریباً 15 لاکھ ریال ہو گئی۔ تہران کے مرکزی بازار کے دکانداروں نے دکانیں بند کر دی اور کہا کہ وہ ان حالات میں کاروبار نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عام شہری جو ایک عرصے سے اقتصادی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس احتجاج میں شامل ہو گئے اور ایک ہفتے کے اندر یہ پورے ملک میں پھیل گئے۔ حکام نے پہلے تو مفاہمتی لہجہ اپنایا، لوگوں کو درپیش مسائل کو اکنالج کیا اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کے پاس احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلا۔ بہت جلد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کریک ڈاؤن کی ویڈیوز سامنے آنے لگی جن سے مظاہروں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ان مظاہروں پر ملک کے باہر سے بھی رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ 2 جنوری کو صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اگر ایران پرتشدد طریقے سے پرامن مظاہرین کو ہلاک کرتا رہا تو امریکہ ان کی مدد کے لیے آ جائے گا۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے لکھا کہ ہم لاکڈ اور لوڈڈ ہیں اور جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگلے ہی دن ایران کے سپریم رہنما آیت اللہ خامنئی نے بیان دیا کہ بلوائیوں کو ان کی جگہ پر رکھا جائے۔ یہ بیان بظاہر سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ایک اشارہ تھا کہ وہ مظاہروں کو طاقت سے ختم کریں۔ خیر، مظاہرے ہوتے رہے اور پھر ایران کے جلا وطن شہزادے رضا پہلوی نے اپیل کی کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں اور مظاہروں میں حصہ لیں۔ پھر حکومت نے انٹرنیٹ اور انٹرنیشنل فون کالز پر پابندی لگا دی۔ جب مظاہرے شدت اختیار کر گئے تو جنوری کے دوسرے ہفتے میں ایران کے ریاستی ٹی وی پر ایران کے اٹارنی جنرل محمد موحدی آزاد نے ایک بیان میں خبردار کیا کہ جو بھی مظاہروں میں شرکت کرے گا اسے خدا کا دشمن سمجھا جائے گا۔ ایران میں اس کی سزا موت ہے۔ اس کے بعد ایران میں ہزاروں لوگوں نے ایرانی حکومت کے حق میں بھی مظاہرے کیے جن میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ 14 جنوری کو ایران کے ریاستی ٹی وی نے پہلی مرتبہ اس دوران بڑی تعداد میں لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ میں نے یہاں لندن میں بی بی سی فارسی سروس کی ہماری ساتھی غنچہ حبیبی آزاد سے بات کی اور پہلے ان سے یہی پوچھا کہ اس وقت ایران میں کیا صورتحال ہے، کیا مواصلات کا نظام بحال ہو گیا ہے اور ایرانی ڈائسپورا اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ ایران اس وقت انٹرنیٹ کی بندش کے 7ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ اس دوران لوگوں سے رابطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگ اسٹارلنک کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں لیکن اس کے ذریعے رابطے کے اپنے خطرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایران میں اسٹار لنک ماڈم اور اس کا دیگر ساز و سامان ہے تو آپ کو 2 سال کی قید کا خطرہ ہے۔ میں اور بی بی سی فارسی میں میرے دوسرے ساتھیوں کو ایران کے اندر سے جو تصاویر مل رہی ہیں وہ بڑے شہروں تک محدود ہیں، چھوٹے قصبوں سے رابطہ ممکن نہیں۔ ویڈیوز کی تصدیق کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اگر کل رات کسی احتجاج کی ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ گزشتہ رات کی تھی یا اس سے پہلے رات کی۔ بیرون ملک مقیم ایرانی باشندے پریشان ہیں۔ وہ ایران میں اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے ایران میں موجود لوگوں سے سنا ہے کہ احتجاج میں بہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ جو مظاہرے ہیں ان کے بارے میں اس وقت آپ کے پاس کس طرح کی اطلاعات ہیں اور جو حکومت کا رسپانس ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟
The response from the government has been severe. हुकूमत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, लेकिन साथ ही हम अब हुकूमत से सुन रहे हैं कि वो मुजाहिरीन के दरमियान फ़र्क कर रही है। हुकूमत कह रही है कि 28 दिसंबर से गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात तक होने वाले दुकानदारों का एहतजाज इसके बाद होने वाले एहतजाज से मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं कि जिसने बाद में एहतजाज किया वो एक लिहाज से मुजरिम है। Afterwards, and they're differentiating it, saying everyone that had protested from last Thursday afterwards is a criminal in a sense. क्या आपको लगता है कि ईरान का जो मुआशरा है वो काफ़ी हद तक इस वक्त मुनक़सिम है, क्योंकि जहाँ एक तरफ बहुत बड़े हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरे हमने देखे हैं पिछले हफ्ता 10 दिन से, 3 हफ्तों से इनफैक्ट, साथ ही गवर्नमेंट की सपोर्ट में भी लोग बाहर निकले हैं, रैलीज़ तेहरान में हुई हैं, दीगर बड़े शहरों में हुई हैं। क्या मुआशरा इस वक्त काफ़ी हद तक मुनक़सिम? ये जानना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और कितने इसके खिलाफ। हम कोई सर्वे या कुछ और डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि माशरा बहुत ज्यादा मुनक़सिम है। इन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इनकी शुरुआत ईरान के ताजिर तबके ने की, एक ऐसा तबका जो कभी इस्लामी इनकलाब की फाइनेंशियल बुनियाद था और जिसकी माली मदद के बगैर इस्लामी इनकलाब कभी कामयाब नहीं हुआ होता। लेकिन ईरान में वक्त के साथ साथ इस तबके का असर रसूख कम हुआ है और पासदारान इनकलाब या रेवोल्यूशनरी गार्ड का ईरान की इकॉनमी पर असर रसूख बढ़ा है। ईरान की मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की मईशत का एक बड़ा किरदार है। हमने ईरानी रियाल की गिरती हुई वैल्यू का जिक्र किया। इसके साथ साथ पिछले एक साल में ईरान में इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह में 40% इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया की कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। एक तरफ ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी सैंक्शंस, तो दूसरी तरफ हुकूमती बदइंतज़ामी और करप्शन। ईरान का मुआशी बहरान बद से बदतर हो गया है। ईरान अपनी मुआशी मुश्किलात के लिए अमरीकी सैंक्शंस को जिम्मेदार ठहराता है। माहिरीन कहते हैं कि ये सच है कि मगरबी सैंक्शंस की वजह से ईरान की मईशत को दिहाइयों से मखसूस चैलेंजेस का सामना रहा है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि इन सैंक्शंस के बावजूद पासदारान इनकलाब ने मुल्क के अंदर एक वसी इकोनॉमिक एम्पायर बनाया है। इस्लामी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी ने पासदारान इनकलाब को एक इलीट फौज के तौर पर तख्लीक किया। 1980 की दहाई में होने वाली ईरान इराक जंग के बाद मुल्क की मजहबी क़यादत ने पासदारान इनकलाब को मुल्क की मईशत में इन्वेस्ट करने की इजाज़त दी। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पासदारान इनकलाब तेल से लेकर ट्रांसपोर्ट, मवासलात और कंस्ट्रक्शन तक इकॉनमी के वसी सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इसका एक नतीजा ये निकला है कि आम ईरानियों और मजहबी और सिक्योरिटी एलीट की जिंदगियों के दरमियान खलीज बहुत बढ़ गई है। इसके साथ साथ मिसमैनेजमेंट और करप्शन, इस सब ने ईरान के अवाम में बेचैनी को बढ़ाने का काम किया है। हुमैरा इख्तिदार किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हैं। मैंने उनसे यही पूछा कि ईरान के इकोनॉमिक मसाइल का असल जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ सैंक्शंस को ही मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाए या गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और पासदारान इनकलाब को मईशत में इन्वेस्ट और कंट्रोल करने की इजाज़त देना भी इसकी एक वजह है? रजीम चेंज हो या ना हो, सबसे ज़्यादा सैंक्शंस का असर अवाम के ऊपर होता है। ये इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है, वेरियस हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से हमें ये पता है। सैंक्शंस एक जिसको कहा जाता है कि दो धारी तलवार है। उसका नुकसान रजीम को भी होता है, लेकिन उसका फ़ायदा भी रजीम को होता है। रजीम को फ़ायदा ये है कि अपनी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को वो सैंक्शंस के ऊपर डाल सकते हैं कि ये हमारा कसूर नहीं है, ये सैंक्शंस का कसूर है। और अगर हम ईरान को पिछले आजकल के हवाले से ना देखें और पिछले 40-45 साल के हवाले से देखें, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इन वेरियस वेज रजीम ने काफ़ी मैनेज किया है और एक लिहाज से काफ़ी अच्छा मैनेज कर लिया फॉर देयर ओन सर्वाइवल, लेकिन ईरान के लोगों के लिए भी। अच्छा, और जो ये करंट डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे हैं, क्या उनकी वजह सिर्फ इकॉनमी ही है? एक बड़ी वजह ये है कि ईरान की रजीम ने इंक्रीजिंगली हार्ड लाइन होती रही है और पिछले कुछ सालों में उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है और उन्होंने वो प्रेशर आगे अवाम पर ट्रांसफ़र किया है। तो पिछले साल उनके ऊपर अटैक हुआ, अटैक की वजह से उन्होंने इस बजट में अपना डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ा दी। वो डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ाई तो लोगों को लगा कि हमारे बाकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हुकूमत ने पैसे देने थे वो कम हुए। और उसके अलावा ऑफ कोर्स सोशल इश्यूज चल रहे हैं, बावजूद इसके कि ईरान के पास इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पर
तेल के ज़खायर हैं, यानी कि वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया के बाद सबसे ज़्यादा ज़खायर ईरान के पास हैं। इसके बावजूद वहाँ पे ऑयल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इतनी चल नहीं रही है और लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। नौकरियाँ नहीं हैं तो उसकी वजह से डिसकंटेंट ज़्यादा है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के लिए सोशल लिबर्टीज़ एक बहुत बड़ा सवाल भी हैं। तो ऐसे में अमेरिका के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? आपको क्या लगता है वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने जिस तरह से एक कम से कम जो पब्लिक पोस्चरिंग थी वो बहुत ही सख्त थी कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में, उसकी क्या वजह हो सकती है फिर? पब्लिक पोस्चरिंग सदर ट्रंप का एक तरीका है, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये मुजाहरे इकोनॉमिक रिलीफ के मुतालबात से शुरू हुए, लेकिन जल्द बात इस्लामिक रिपब्लिक के खात्मे की होने लगी। माहिरीन कहते हैं कि ईरान की हुकूमत मुल्क के अवाम के ज़्यादातर हिस्से में गैर मकबूल है और इसकी वजह सिर्फ मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान ही नहीं बल्कि रियासत की तरफ से इनफरादी और समाजी सतह पर रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ भी हैं, जैसे कि आप क्या पहन सकते हैं, मुआशरती ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वगैरह। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंसानी हुकूक की तंजीमें ईरान पर इंसानी हुकूक के कारकुनों, ख़वातीन, नस्ली और मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने आज़ादी इजहार और इज्तिमा की आज़ादी पर सख्त कदगनें लगाई हैं, जबरी हिजाब और लिबास के मुतल्लिक़ कानून की खिलाफ वर्जियों पर सज़ाओं को मज़ीद सख्त किया है और दर्जनों कारकुनों, सहाफ़ियों, सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद कर रखा है। मोहम्मद हुसैन बाकरी ईरानी और आलमी अमूर पर एक तज्ज़ियाकार और इक़बाल फोरम के चेयरमैन हैं। वो तेहरान में रहते हैं। मैंने सबसे पहले तो उनसे यही पूछा कि ईरान में मुजाहिरों की अब क्या सूरत हाल है और क्या इनके पीछे स्टेट रिप्रेशन भी है? मंडे से आज तक न कोई हमें शोर शराबे की आवाज़ें सुनी आ रही है, न कोई प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है, न लोग बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल एक सुकून का माहौल है, जो लगता ही नहीं है कि 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पे कितने लोग मारे गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशंस हो गई हैं, बातचीत हुई है प्रोटेस्टर्स की, जिसकी वजह से हालात बेहतर हो गए? नहीं, बात ये है कि दो चीज़ें मैं इसमें बता सकता हूँ। एक, ये जो रैलीज, प्रो गवर्नमेंट रैली जो निकली थी मंडे को, जब 30 लाख लोग बाहर आए तो अवाम के पास भी एक, मेरा ख्याल है, एक प्रोजेक्शन आ गई कि भाई ये है ईरानी अवाम। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ कि अनफॉर्चुनेटली ये जो ईरान के एतराज़ात या आप मुजाहिरे कहें, 11 दिन 28 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक ये बहुत पुरअमन रही और उसमें ना तो कोई फायरिंग हुई, ना कोई लोग मारे गए, उसमें कुछ भी इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं हुए। लेकिन 8 दिसंबर सिर्फ 3 दिन के अंदर जब 100 से ज़ायद अहलकार शहीद हुए और काफ़ी लोगों के ऊपर भी फायरिंग हो गई, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने SMS देना शुरू कर दिया सबको कि अपने बच्चे रात के वक्त आप बाहर ना भेजें, प्रोटेस्ट पे ना भेजें, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि कौन फायरिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बात इकोनॉमी से शुरू हुई और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे शुरू हुई, लेकिन रिजीम चेंज के बारे में भी बात हो रही थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट थे ये मौजूदा हुकूमत के लिए किसी तरह का रियल ख़तरा पैदा कर सकते हैं? अगर अभी भी गवर्नमेंट इस जो एहतजाज है इसको सीरियस ना ले ले तो लोग खामोश नहीं बैठेंगे, ईरानी लोग। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी जो खदशात है इनको एड्रेस करे और फौरी इक़दाम करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ये कर भी रही है। ईरान में होने वाले इन मुजाहिरों और प्रोटेस्ट के बारे में खुद ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ भी वाज़ेह होता जा रहा है। उनका कहना है कि इस मुल्क गिर एहतजाज और कशीदगी के पीछे दरअसल फ़ॉरेन ममालिक हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान की इकॉनमी और इख्तिलाफ राय पर पाबंदियों की जगह इसराइल और अमरीका को इन ताज़ा मुजाहिरों का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा किया है, और किन की शह पर? अमेरिका और इसराइल की। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क पर हमला किया, हमारे बच्चों को मारा। वो तुम्हें हिदायत दे रहे हैं, जाओ ये काम करो, हम यहाँ हैं, तुम चीजें तबाह करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। अब इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि इसराइल के हेरिटेज वजीर अमिचाई एलियाहू ने आर्मी रेडियो से बात करते हुए कहा कि जब हमने जून में ईरान पर हमला किया तो हम उसकी सरजमीन पर मौजूद थे, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हमारे कुछ लोग इस वक्त वहां ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पेयो, जो कि अमेरिकी खुफिया इदारे CIA के साबिक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ईरान की सरजमीन पर इसराइली एजेंट्स की मौजूदगी का एक तरह से एतराफ़ किया था। इस पोस्ट में उन्होंने नए साल की मुबारकबाद दी थी।
احتجاج کرنے والے ہر ایرانی شہری اور ان کے ساتھ کھڑے ہر موساد ایجنٹ کو۔ تو کیا واقعی ان مظاہروں میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ایران میں رژیم چینج شاید امریکہ اور اسرائیل کے اس خطے میں اسٹریٹجک مفادات سے جڑی ہوئی ہے؟ رجیم چینج اسرائیل تو چاہتا ہے، اور نیتن یاہو ان پرٹیکولر بار بار انہوں نے کہا کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں۔ امریکہ کے کیس میں اٹ از انکلیئر کہ وہ ایگزیکٹلی رجیم چینج چاہتے ہیں یا وہ صرف اس رجیم سے بہتر ایک طرح سے ایکسیپٹنس چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بے شک رجیم یہی رہے، لیکن یہ رجیم یہ مان لے کہ اس وقت دنیا میں امریکہ کا کہنا ماننا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو باقی ارد گرد کے مسلمان ملک ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای کے ممالک، انہوں نے پروٹیسٹ تو نہیں کیا ایران کی اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ رجیم چینج کے ساتھ جو انسٹیبلٹی آئے گی اس کے بارے میں وہ فکر مند ہیں۔ سو اٹ مے بی کہ دیر آر ڈفرنٹ انٹرسٹ، سو اسرائیل کا انٹرسٹ اور امریکہ کا انٹرسٹ اور یو اے ای اور قطر اور سعودی عربیہ کا انٹرسٹ انٹائرلی الائنڈ نہیں ہے on the question of Iran right now۔ دیکھیں، ویسے امریکہ ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے، اسرائیل ایران کے موجودہ نظام حکومت اور رہنماؤں کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ ایران کے لیے امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی اس کے دیرینہ مخالفین اور دشمن ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں۔ ایران کے اندر موجودہ حکام سے ناراضی واضح ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس طرح کے وسیع پروٹیسٹ پہلے بھی ہو چکے ہیں اور حکام طاقت کے استعمال سے ان پر قابو پانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ جہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ حکومتی پالیسی سے ناخوش ہے، وہیں حکومت کو آبادی کے ایک دوسرے حصے کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یہاں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت ایران میں رژیم چینج یعنی پورے نظام حکومت کو بدلنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسا واقعی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال میں یہ معاشرہ منقسم نہیں ہے، یہ معاشرہ ایک معاشرہ ہے۔ 95% of Iranian population are critic of the government economic management. 95% altogether. But at the same time, اسی ٹائم پہ 95% ایرانی عوام اپنے حکومت کے ساتھ ہے، فورن انٹرونشن اور کسی بھی فسادات کے خلاف۔ ایران کو اس وقت کئی سیریس چیلنجز کا سامنا ہے۔ 3 ہفتے پہلے شروع ہونے والے یہ احتجاج شدید اکنامک پریشر اور ایرانی حکومت کے ساتھ فرسٹریشن اور ناراضی کا نتیجہ ہیں، یہ تو واضح ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایران کے عوام گزشتہ سال ہی اسرائیلی حملے برداشت کر چکے ہیں اور امریکہ کی وینزویلا میں اور دیگر ممالک میں مداخلت کا نتیجہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کے عوام کے احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فورن انٹرونشن چاہتے ہیں۔ جنگ، بموں اور تشدد کے ذریعے آج تک شاید کہیں بھی جمہوریت قائم نہیں ہوئی، اور یہاں بھی فیصلہ ایرانی عوام اور سیاستدانوں کو ہی کرنا ہوگا۔ یورپی رہنماؤں نے گرین لینڈ پر قبضے کے مجوزہ منصوبے کے مخالف 8 اتحادیوں پر اضافی محصولات یعنی ٹیرف عائد کیے جانے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کی مذمت کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے اس اقدام کو مکمل غلط قرار دیا، جبکہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخواں نے اسے ناقابل قبول کہا ہے۔ یہ تبصرے ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد سامنے آئے جس کے مطابق ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈ اور فن لینڈ سے آنے والی مصنوعات پر 1 جنوری سے 10% محصول عائد کیا جانا ہے اور بعد میں اسے بڑھا کر 25% بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اضافی ٹیرف اس وقت تک رہے گا جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ ٹرمپ اصرار کرتے ہیں کہ ڈنمارک کا خود مختار علاقہ گرین لینڈ امریکہ کی سلامتی کے لیے نہایت اہم ہے۔ وہ یہ علاقہ زبردستی چھین لینے کے امکان کو بھی رد نہیں کرتے۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد یورپی یونین نے اتوار کے روز بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں اجلاس طلب کیا ہے۔ اسی دوران امریکہ کے مجوزہ قبضے کے خلاف گرین لینڈ اور ڈنمارک میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج بھی کیا ہے۔ A demonstration like this is an effort to make sure Greenlanders' voices are heard. I'm quite worried, I would say. I feel it in my work every day, and I have a small daughter, 7 months, and I want her to grow up with a future that she can decide, or at least this is decided upon by our people. واضح ہے کہ شمالی امریکہ اور قطب شمالی کے درمیان واقع گرین لینڈ کم آبادی والا لیکن وسائل سے مالا مال علاقہ ہے۔
किसी मिसाइल हमले की सूरत में जल्द इंतबा जारी करने और बहरी जहाजों की निगरानी के लिए ये जगह निहायत मौजू है। ट्रंप माजी में कह चुके हैं कि अमेरिका ये इलाका हासिल करके रहेगा, आसान तरीके से या फिर मुश्किल तरीके से, जबकि यूरोपीय ममालिक डेनमार्क की हिमायत कर रहे हैं। उनकी दलील है कि खित्ते की हिफाजत नेटो की मुश्तरका जिम्मेदारी है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और बरतानिया ने बज़ाहिर देखभाल के लिए महदूद तादाद में फौजी ग्रीनलैंड भेजे हैं। शनिचर के रोज समाजी राब्तों के अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर नए टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने लिखा था कि ये मुल्क बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और हमारे सैयारे की हिफाजत, सलामती और बका दाव पर लग चुकी है। ट्रंप ने तजवीज दी कि इन ममालिक से अमेरिका बरामद की जाने वाली मसनूआत पर अगले माह से 10% टैरिफ आयद किया जाए और जून में इसे बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाए। ट्रंप के मुताबिक ये टैरिफ उस वक्त तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को मुकम्मल तौर पर खरीदने का कोई मुआहदा ना हो जाए। इसके रद्द-ए-अमल में बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा कि नेटो की इज्तिमाई सलामती के लिए इक़दामात करने वाले इत्तेहादियों पर टैरिफ आयद करना मुकम्मल तौर पर गलत है और इस मामले पर हम बराह रास्त अमरीकी इंतजामिया से बात करेंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैख्वा ने कहा, इस मामले पर टैरिफ की धमकी नाकाबिले कबूल है और हम किसी भी ड्रावे में नहीं आएंगे। स्वीडन के वजीर आजम एल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि हम खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। स्वीडन मुश्तरका रद्द-ए-अमल की तलाश के लिए यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक नॉर्वे और बरतानिया के साथ संजीदा मुज़ाकरात करेगा। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देर लेयन ने एक्स पोस्ट में कहा कि इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी बैनुल-अक़वामी कवानीन के बुनियादी उसूल हैं। महसूलात खित्ते के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाएंगे और सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। डेनमार्क के वजीर खारजा लार्स लोके रासमुसन ने ट्रंप की धमकी को हैरानकुन करार दिया, जबकि यूरोपीय पार्लिमान के जर्मन रुकन मैनफ्रेड वेबर कहते हैं कि ट्रंप के इस इकदाम से यूरोप अमेरिका तिजारती मुआहदे पर सवाल पैदा हो गए हैं। इस मुआहदे पर गुज़िश्ता साल बात हुई थी और तौसीक होना अभी बाकी है। सामीन, दुनिया एक बार फिर ताकत के तवाज़न की सियासत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां अमेरिका, चीन और रूस आलमी गलबे के लिए सरगर्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला में कार्रवाई के बाद मगरबी कुरा में अमेरिकी बर्तरी का ऐलान किया है, जबकि वाशिंगटन सबसे पहले अमेरिका की पॉलिसी के तहत फौजी, सियासी और मुआशी दबाव को खारिजा हिकमत अमली का मरकज बना रहा है। दूसरी जानिब चीन तिजारत, टेक्नोलॉजी, नायाब मादनी वसाइल और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के जरिए दुनिया भर में अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, जबकि रूस साबिका सोवियत रियासतों में तारीखी असरात और फौजी ताकत के जरिए अपने दिफाई अज़ाइम को आगे बढ़ा रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल यूक्रेन और जॉर्जिया में मुदाखलत है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तीनों ताकतें एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील की कोशिश कर रही हैं, जिसके असरात यूरोप समेत पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे और आलमी सियासत एक बार फिर ताकत के उसूल पर उस्तवार होती नजर आ रही है। सनीचर की शब पाकिस्तान के शहर कराची के सदर इलाके में वाक़े गुल प्लाजा में लगने वाली शदीद आग के नतीजे में अब तक 6 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वालों में एक KMC फायर फाइटर भी शामिल हैं। आग के सबब प्लाजे के 2 हिस्से जमीन बोस हो गए हैं। दुकानदार जैन और सुफियान ने BBC उर्दू को बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं और कई लोग अंदर फंस गए। जैन ने रेस्क्यू इदारों पर देर से कार्रवाई करने के इल्जामात भी आयद किए हैं। सिंध में रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान हसन अल हसीब ने BBC उर्दू को बताया कि सदर में वाक़े 8000 मुरब्बा गज पर मुहित इमारतों में लगने वाली आग इंतहाई शदीद है और इसे बुझाने का अमल पूरा होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान ने मजीद बताया कि गुल प्लाजा में 1200 दुकानें हैं और इनमें जल्दी आग पकड़ने वाला सामान जैसे कि प्लास्टिक फोम, कपड़ा, कालीन और परफ्यूम्स वगैरह मौजूद हैं। हसन अल हसीब के मुताबिक इमारत इंतहाई पुरानी है और आग से इसके गिरने का खदशा भी मौजूद है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन गैर मामूली एहतियात से किया जा रहा है। रेस्क्यू कार्रवाई में KMC और पाकिस्तान नेवी के एहलकार भी शामिल हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि इमारत के तंग दाखिली रास्ते और इलाके में जारी तामीराती काम रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट बने हुए हैं। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने वाक़े के बाद कहा कि इमारतें बनाते वक्त हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वाक़यात में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होता है जो वहाँ कारोबार करते हैं या रिहाइश पजीर हैं।
सामीन चीन के रिहायशी डाई डाई को एहसास हुआ कि उनके वालिद चीनी नए साल से पहले होने वाली रिवायती इज्तिमाई दावत के लिए 2 सूअर ज़बा करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वो नहीं चाहती थी कि उनके वालिद को बुरा महसूस हो। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में उन्होंने चीन के टिक टाक डुइन पर लिखा कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मेरे वालिद उम्र रसीदा हैं और मुझे डर है कि वो इन सूरों को संभाल नहीं पाएंगे। 20 साल की डाई डाई ने वादा किया कि जो लोग उनके गांव आकर मदद करेंगे उन्हें सूअर के गोश्त की दावत दी जाएगी। चोंगचिंग के देही इलाकों में बड़ी इज्तिमाई दावतें सकाफत का अहम हिस्सा हैं, जिनमें पका हुआ सूअर का गोश्त, भाप में पकी पसलियां, सूप और घर में बनी शराब शामिल होती है। डाई डाई ने कहा कि मैं अपने गांव में सर फखर से बुलंद करना चाहती हूं। उनकी मदद की अपील को 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले और रद्द-ए-अमल किसी जज्बाती फिल्म के मंजर जैसा था। हजारों गाड़ियां गांव की तरफ रवाना हो गईं, जिनमें जरूरत से कहीं ज्यादा लोग सवार थे। इतने ज्यादा लोग आ गए कि जनूब मगरबी चीन के देही इलाके चोंगचिंग में सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। ड्रोन तस्वीर में देखा जा सकता है कि खेतों के दरमियान सड़कों पर गाड़ियां कतार में खड़ी हैं और लोग किसी तरह गांव में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रैफिक से बचने के लिए दूर दूर से पैदल ही चल पड़े। इस तकरीब को लाखों लोगों ने ऑनलाइन बराह रास्त भी देखा। लोगों की तादाद को देखते हुए मुकामी हुकूमत ने इजाफी सूअर फराम किए और छोटे रेस्तोरानों ने खुली जगह पर मेहमानों की खिदमत शुरू कर दी। 2 दिन तक जारी रहने वाली इस दावत ने गांव के लोगों और डाई डाई के लिए नाकाबिले फरामोश लम्हे पैदा किए। डाई डाई ने सोशल मीडिया पर आने वाले सब के जोश और खलूस को सराहा और कहा कि ये तजुर्बा दिल को सुकून देने वाला और यादगार था। ये वाकया चीन में सोशल मीडिया के जरिए सकाफती रिवायात को दोबारा जिंदा करने की एक मिसाल बन चुका है। 物资赶到村头接管后，请紧急联系养殖户，加购5头猪，把2头扩充到7头，还火速安排了打铁花、舞龙狮等非遗表演，把年味拉满。交警也第一时间到场维持秩序，疏导交通，村干部全员上阵，搬桌搭棚、烧火备料。 बरतानवी दौर के हिंदुस्तान में जब तवाइफों और रकासाओं के वजूद पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी जमाने में कोलकाता की मशहूर तवाइफ गौहर जान एक अजीम गुलकारा के तौर पर उभर कर सामने आई। आजमगढ़ में पैदा होने वाली गौहर जान ने क्लासिकी और नीम क्लासिकी मौसीकी को ग्रामोफोन के जरिए आवाम तक पहुंचाकर तारीख रकम की और जनूबी एशिया की पहली रिकॉर्डेड गुलकारा बनी। गौहर जान ने सैकड़ों गाने रिकॉर्ड किए, बेपनाह दौलत कमाई और शाही व बरतानवी तकरीबात में परफॉर्म भी किया। गांधी जी ने भी सुराज फंड के लिए उनका प्रोग्राम मुनक्कद करवाया, मगर वादा पूरा ना होने पर गौहर जान ने खुलकर एहतजाज भी किया। जिंदगी में शोहरत और दौलत के बावजूद गौहर जान मोहब्बत में धोखे का शिकार हुई। अपने से आधी उम्र के नौजवान से शादी ने न सिर्फ उनका दिल तोड़ा बल्कि उनकी जायदाद भी छिन गई। उम्र के आखिरी हिस्से में वो तन्हाई, गुमनामी और तलखी का शिकार रहीं और जनूबी हिंदुस्तान में वफात पा गईं। गौहर जान की जिंदगी फन, ताकत, इस्तेसाल और अंजाम की एक दर्दनाक मगर तारीखी मिसाल है। 19वीं सदी का दौर, ग्रामोफोन का दौर, जिस पर थिरक रही थी एक दिलकश आवाज। मेरा नाम गौहर जान है, मैंने कजरी गाई है। गौहर जान नाम तो सुना ही होगा आपने। पहले बात यूपी के आजमगढ़ में जन्मी गौहर जान की, जिन्हें एलीन एंजेलिना योवर्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब उनकी मां मुसलमान बन गई तो वो गौहर जान बन गई। वो कोलकाता आ गई और उन्होंने यहाँ गायकी और शास्त्रीय नृत्य में ट्रेनिंग ली। गौहर जान एक ऐसा नाम जो फैशनिस्टा थी और उस समय ऑस्ट्रिया में बन रही माचिस की डिब्बियों पर उनकी तस्वीरें छपती थी। ऐसा था उनका जलवा। अपनी पूरी जिंदगी में गौहर जान ने तकरीबन 600 रिकॉर्ड करे, बनाए और उस वक्त वो हर एक रिकॉर्ड के 3000 रुपए लेती थी। 3000 रुपए उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी रकम रही है और उन्होंने ना तो सिर्फ 1-2 लैंग्वेजेस में या भाषाओं में किया है, बल्कि 20 भाषाओं में उन्होंने रिकॉर्डिंग करी। हिंदी, अंग्रेज़ी, पश्तो, अरबी, फ्रेंच, तमिल, कुछ भाषाएं हैं जो हम बयान कर रहे हैं यहाँ पे।
गौहर जान के बारे में ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ हमें लगती है हमेशा कि आप उनकी कोई भी रिकॉर्डिंग अगर सुने तो वो हमेशा अपनी हर रिकॉर्डिंग को ख़त्म करती थी ये कह के कि मेरा नाम गौहर जान है। तो वो कहीं ना कहीं एक असर्शन अपनी आइडेंटिटी का वो हमेशा एज अ वुमन, एज अ औरत, वो उन्होंने अपनी हर एक रिकॉर्डिंग में किया है। तो वो एक बहुत ही दिलचस्प बात है एक अदाकारा के लिए, अपने आप अपनी आइडेंटिटी को ओन करना कि हाँ मैं अदाकारा हूँ। और हमारे थोड़ी बहुत रिसर्च में ये भी ऐसे पता चलता था कि वो शायद डरती थी कि कहीं मेरी आवाज़ खो ना जाए या कोई पहचान ना पाए, तो हमेशा उसको वो मेरा नाम गौहर जान है उससे ख़त्म करती थी। मेरे हिसाब से गौहर जान का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि वो सिर्फ उन्होंने रिकॉर्डिंग तो करी और उस डर को, जो एक नई टेक्नोलॉजी थी, उसको वो ओवरकम भी किया उन्होंने, लेकिन वो एक बहुत खूबसूरत अदाकारा थी जिन्होंने उस वक्त पे जॉर्ज V के सामने परफॉर्म किया। और वो रोज़ाना परफॉर्मेंसेस वो और बड़ी मलका जान करती हुई थी आपके स्वारेज़ में, चाहे वो ब्रिटिश स्वारेज़ हो, ब्रिटिश फैमिली के या जैसा भी हो, तो वो कंटिन्यूसली रहा। उस वक्त मेरे ख़्याल में ये कदम उठाना और अपने आप को असर्ट करना कि हमें इतने पैसे चाहिए हर एक रिकॉर्डिंग के, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही मजबूत बात उन्होंने अपनी रखी है। पाकिस्तान में हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पर्सनल बैगेज स्कीम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये सहूलत बुनियादी तौर पर समंदर पार पाकिस्तानियों को दी गई थी ताकि वो छोटी और दरमियानी क्लास की गाड़ियां पाकिस्तान ला सकें। अब सिर्फ गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंसी स्कीम बरकरार हैं, तहम उनमें भी सख्त शराइत आयद की गई हैं, जैसा कि 2 गाड़ियां दरामद करने के दरमियान वक्फा 850 दिन और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम में गाड़ियां उसी मुल्क से खरीदना जरूरी है जहां रिहाइश हो। कारोबारी माहिरीन का कहना है कि बैगेज स्कीम के खात्मे के बाद छोटी जापानी गाड़ियां जो मुतवस्त तबके की पहुंच में थी, अब उनकी आमदोरफ्त कम हो जाएगी और आवाम के लिए मुनासिब कीमत में मियारी गाड़ी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जने मुकामी सनत के माहिरीन का ख्याल है कि इस पाबंदी से मुकामी गाड़ियों की सनत को फ़रोग़ मिलेगा और मुस्तकबिल में छोटी गाड़ियों की पैदावार और मयार बेहतर हो सकता है। आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2024 और 2025 के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों ने 40,000 गाड़ियां भिजवाईं, जिनमें 99% छोटी गाड़ियां थीं, जो अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर बैगेज स्कीम के खात्मे के बाद रुक जाएंगी। हरीफ कप्तान से मुसाफा ना करना मुकम्मल तौर पर गैर इरादी और तवज्जो बटने का नतीजा था। इसका मकसद हरीफ की तौहीन नहीं था। ये वो वजाहत है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में टॉस के दौरान इंडियन कप्तान से हाथ ना मिलाने के मामले पर दी है। शनिचर को जिम्बाब्वे के शहर बुलाविया में खेले जाने वाले मैच में अंडर 19 ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस के तहत 18 रन से शिकस्त दे दी थी, लेकिन इस मैच के नतीजे से ज्यादा टॉस के दौरान कप्तानों के हाथ ना मिलाने के मामले पर बात हो रही है। इस मामले को इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मुसलसल बढ़ते हुए तनाव के असर के तौर पर भी देखा जा रहा है और इस पर सोशल मीडिया पर भी बहस जारी है। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम इंडिया भेजने से इनकार कर दिया है और इस मामले पर उसके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ मुज़ाकरात में भी डेडलॉक बरकरार है। टॉस के दौरान हाथ ना मिलाने से मुतल्लक तनाज़ा पहली मर्तबा गुज़िश्ता साल 14 सितंबर को उस वक्त सामने आया जब इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाए बगैर टॉस के दौरान वापस चले गए थे। यहां से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के मैदान में भी कशीदगी का आगाज हो गया था। खिलाड़ियों ने मैच के बाद भी रिवायती हैंडशेक नहीं किया था और सूर्या कुमार यादव मैच जीतने के बाद अपनी टीम को लेकर ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। ये तनाज़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं और बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम इंडिया भेजने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के नतीजे में वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस दीगर मुकामात बाशमूल श्रीलंका में मुनक्कद किए जाएंगे।
और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें। शामी फौज ने शुमाली व मशरकी शाम में बड़ी पेशरफ्त करते हुए मुल्क के सबसे बड़े तेल के जखीरे अल उमर आयल फील्ड और कोनिको गैस फील्ड पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक अल तबाका शहर और उसके अतराफ में सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक कुर्द क़यादत वाली शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस दीर एज़ोर के मशरकी इलाकों से पसपा हो गई है। उस दौरान शामी फौज ने सद्दे फुरात, अल तबाका फौजी अड्डे और मुतअद्दिद देहात का कंट्रोल भी संभाल लिया है। शामी हुकाम ने SDF पर अल रका में दरियाए फुरात के पुल तबाह करने का इल्जाम लगाया है, जिससे पानी की फराहमी मुतासिर हुई है। दूसरी जानब अमेरिका ने शामी हुकूमत को तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी कम करने का मशवरा दिया है। अल तबका और रसद फुरात को शाम में तवानाई, पानी और मवासलात के लिहाज से इंतहाई अहम तस्वर किया जाता है, जबकि सूरत हाल के बाइस अल रका में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है।